Hello, my dear students of class 10th of ICSE. So let us start the video. Today we will discuss on this topic, principle of conservation of energy. This is in continuation with the lectures that we have already done for the chapter work, energy and power. If you haven't watched the previous lectures of this chapter, make sure to watch them. The link of the playlist is given in the description box of this video. All right. So previous to this lecture, we have discussed the formulas for potential energy, kinetic energy, then the relation between kinetic energy and linear momentum. We have discussed a lot of numericals. All right. So now we will proceed with the next topic of this chapter, which is conservation of energy. We will discuss about principle of conservation of energy, which is a very important topic, and not only concept based theoretical questions but also concept based numerical type of questions also come from this particular topic. All right, so let's start with the lecture of today. I hope you are ready with the notebook, your pen and everything. Chalo start karte hain. So principle of conservation of energy, ये एक principle है. What does it say? According to the principle of conservation of energy, energy can neither be created nor it can be destroyed. It only changes from one form to another. Very simple thing. We have, uh, you know, heard this statement many times before. Probably in class 6, 7, 8, 9. You have heard about this statement, right? Energy cannot be created, it cannot be destroyed either, but it can only be changed from one form to the another form. So this is what the theorem says. But now we have to do a theoretical verification for the total mechanical energy in a body during its free fall. And we will see that at any point of time, the total mechanical energy of the body is same. That means it is constant. Now, so to understand this, we need to draw a figure. We need to consider three different points where the body is, falling freely, and three different points we will be considering, and we will measure how much amount of mechanical energy is present at different points. We will see that the mechanical energy at the highest point is same as somewhere in the middle and when it has just touched the ground. कोई बॉडी अगर गिर रहा है ऊपर से नीचे तो किसी भी पॉइंट पर उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होता है. इसी बात को हम प्रूव करने वाले हैं. इसका मतलब कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है. द वर्ड इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो कंजर्व्ड है, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. उसी बात को हम प्रूव करेंगे. क्या प्रूव करने वाले हैं, पहले तो वो हेडिंग लिखो और मेरे साथ साथ ध्यान से इस डेरिवेशन को समझो एंड कॉपी भी करना. जरूरत पड़े तो पहले समझो एंड लेटर ऑन यू कैन कॉपी इट. पहले बस देखो, हम प्रूव करने वाले हैं थियोरेटिकल वेरिफिकेशन. इस बात को हम वेरीफाई करेंगे. किस बात का? ऑफ k plus u is equal to constant. Now don't get scared कि what is this k and what is this plus u. देखो, मैंने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है. इसी बात को हम प्रूव करेंगे. लेकिन प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, द टोटल काइनेटिक एनर्जी plus the total potential energy in a body is nothing but the mechanical energy of the body. तो हम यही हम प्रूव करने वाले हैं ना कि कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो उसका मैकेनिकल एनर्जी सेम रहता है, चाहे वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हो, चाहे वो बीच में कहीं पे भी हो, और चाहे वो जस्ट ग्राउंड को टच किया हो गिरते गिरते. किसी भी पॉइंट पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम है. यही हम प्रूव करने वाले हैं. यानी हम ये प्रूव करने वाले हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट. के मींस काइनेटिक एनर्जी, यू मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वो कांस्टेंट है. यही हम प्रूव करने वाले हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है और हम ये मानेंगे कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, आसपास कोई हवा नहीं है, हवा का कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम ये अज्यूम करेंगे. तो ओनली एंड ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज द gravitational force. Okay, this is what we will be considering. Let us draw a figure. This is the ground. Okay, मान लेते हैं ये जमीन है एंड जमीन से कुछ हाइट पर ये बॉल है. एक मिनट, हाँ, ये बॉल है
इस बॉल को, दिस ब्लैक कलर्ड इज द बॉल, इस बॉल को हम इस पॉइंट ए से गिरा रहे हैं, एंड दिस पॉइंट ए इज एट हाइट h अबव द ग्राउंड। कितने हाइट पर है बेटा? h हाइट पर है, h हाइट पर है। ये बॉल h हाइट से ग्राउंड को की तरफ गिर रहा है। अब ये बॉल गिरते गिरते इस पोजीशन पर पहुंचा, कोई भी ये पोजीशन मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही हो, ग्राउंड और पॉइंट ए के बीच का मिड पॉइंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनी पॉइंट। चलो ना थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं, तुम्हें लग रहा है कि सर तो मिड पॉइंट में ही बना रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैंने यही ऐसा बनाया है कि ए और ग्राउंड के बीच का मिड पॉइंट नहीं है। ओके, सो लेट अस कंसीडर इट कैन बी एनी पॉइंट, इट कैन बी मिड पॉइंट ऑल्सो। तो ये हो गया पोजीशन बी, ये बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते बी पर तो आएगा, पोजीशन बी पर, और फिर ये बॉल और कुछ देर बाद और नीचे जाएगा, एंड वी आर नाउ ड्रॉइंग दैट पोजीशन ऑफ द बॉल व्हेन इट हैज जस्ट टच्ड द ग्राउंड। ग्राउंड को अभी जस्ट आके इसने टच किया है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज पोजीशन सी। ग्राउंड को आके जस्ट टच किया है। नाउ लेट अस कंसिडर दिस हाइट एज एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। ए से बी का डिस्टेंस को हम x मान लिया, कोई भी सिंबल दे सकते हैं, x ले लिया, तो डेफिनेटली b से c का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? b से c मतलब b से ग्राउंड का h माइनस एक्स, क्योंकि पूरा h है, उसमें से ये x को हम अगर माइनस कर दे तो बचेगा क्या? h माइनस एक्स। अब ये फिगर हो गया, राइट? सो ये फिगर के बारे में पहले थोड़ा लिख लेते हैं। ये जो बॉडी गिर रहा है, पोजीशन ए से गिर रहा है, उस बॉडी का मास हम m मान लेंगे। कितना? m। ठीक है, तो m मास गिर रहा है, कितना हाइट से गिर रहा है? h हाइट से गिर रहा है, यानी पॉइंट a इज एट हाइट h अबव द ग्राउंड। ठीक है, सो विल राइट दैट, लेट अ बॉडी ऑफ मास m be falling freely under gravity from a height h above the ground, that is कौन सा पोजीशन? फ्रॉम पोजीशन ए, पोजीशन ए से गिर रहा है। अब देखो, पोजीशन ए को हम स्टडी करते हैं, एट पोजीशन ए, सिर्फ पोजीशन ए की हम बात पहले करेंगे, एक एक करके हम सारे पोजीशन की बात करेंगे। पहले ए की बात करेंगे, फिर पोजीशन बी को हम स्टडी करेंगे, फिर पोजीशन सी पर उसमें कितना एनर्जी है उसको पढ़ेंगे। एवरी पोजीशन विल बी एनालाइज्ड सेपरेटली। नाउ एट पोजीशन ए, जब पोजीशन ए पर है बॉल, उस समय भी गिर नहीं रहा है, उस समय मैंने बॉल को छोड़ा नहीं है, ऊपर से वो पकड़ के रखा है कि अभी थोड़ी देर बाद उसको ड्रॉप करूंगा। सो दैट is that point where the ball is still in the state of rest. Ball is still in the state of rest, क्योंकि मैं बॉल को ए पर, मतलब पॉइंट ए पर पकड़ के रखा है हमने, बॉल को अभी तक छोड़ा नहीं है, नीचे वो अभी गिर नहीं रहा है। अभी जस्ट छोड़ूंगा तो फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा, लेकिन पॉइंट ए इज दैट पोजीशन ऑफ द बॉल व्हेन इट इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये तुमको ध्यान ध्यान में रखना है, यानी पॉइंट ए पर बॉल का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, वो 0 है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर ए की बात कर रहे हैं, एट पोजीशन ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0। 0 क्योंकि बॉडी इज इन द, सिंस द बॉडी, ये तो बात सिंपल सी बात है, बॉडी इज एट रेस्ट एट पोजीशन ए। तो कोई अगर बॉडी में वेलोसिटी ही नहीं है तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी तो होता है उसके हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, जानते हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी तो इसमें है ही नहीं, यानी ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू 0 स्क्वायर, तो दैट इज 0। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है इस बॉल में
पोजीशन ए पर, जब वो बॉल ए पर है। अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जिसको हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट कर रहे हैं, U। अब U का फॉर्मूला होता है mgh। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। तो mgh है, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी 0 है एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो अभी हम k प्लस यू करेंगे, है ना, टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट k प्लस यू। k कितना है 0, u कितना है mgh। तो 0 प्लस mgh इज mgh। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल गया k प्लस यू। फर्स्ट केस में मतलब पोजीशन ए पर कितना mgh है। तो अब जो बात मैंने तुम लोगों के साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि पोजीशन ए पर जो टोटल एनर्जी है वो अगर mgh है, तो पोजीशन बी पर भी mgh होना चाहिए एंड सी पर भी mgh होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि k प्लस यू सेम होता है किसी भी पॉइंट पर। तो क्या वाकई ऐसा होगा? चलो देखते हैं। अब हम करेंगे एट पोजीशन बी की बात। पोजीशन बी की बात करते हैं, ध्यान से देखो। पोजीशन बी में जब बॉल आ गया है तो उसने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। अंडरस्टैंड द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द बॉल हैज रीच्ड पोजीशन बी, तो वो ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ए से बी तक तो आया, क्योंकि मैं बी की बात कर रहा हूं। अभी हमारा बॉल कहां पर है? अभी हमारा बॉल पोजीशन बी पर है, यहां पर है बॉल, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो बी तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स डिस्टेंस कवर किया, है ना, बिकॉज ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। यानी ए से बी आने में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी तक आने में? एक्स डिस्टेंस कवर किया है बॉल। और उसी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी को हम एस से डिनोट करते हैं, एस से। तो एस मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो इस केस में एस इज एक्स, क्योंकि बॉल या अभी जो भी बॉडी है वो ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है? एक्स डिस्टेंस। तो एस इज एक्स इन आवर केस। हालांकि इसको हम यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन दिमाग में तुम्हारा रिकॉर्ड रहना चाहिए कि यहां पर हमारा एस एक्स है। एस का वैल्यू क्या है? एक्स है। अच्छा, बॉडी स्टार्ट हुआ था, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन जब वो पोजीशन बी पर है तब तो वो रेस्ट में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। वेलोसिटी उसमें है, और मान लेते हैं वो वेलोसिटी v है। कितना वेलोसिटी है अभी? v, क्योंकि बॉल अभी गिर रहा है, बॉल मोशन में है। थोड़ी b पर आके बॉल रुक गया है, हवा में कैसे रुक जाएगा? वो तो हम एक पोजीशन को कंसिडर कर रहे हैं कि हमने बॉल ऐसे गिर रहा था तो हम फोटो खींच लिया क्लिक करके, तो बॉल हमें अब दिख रहा है कि थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन क्या बॉल वहां के रुक गया है? नहीं रुका है, बॉल तो नीचे गिर रहा है कंटिन्यूअसली। तो बी पर बॉल आके रुका नहीं है, कैसे रुकेगा? हवा में कैसे रुक जाएगा? तो बॉल इज हैविंग सम वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी एट पोजीशन बी इज v। मान लेते हैं अभी वेलोसिटी कितना है? v है। तो स्टार्ट जब हुआ था तब तो कोई वेलोसिटी नहीं था, क्योंकि बॉल को तब हमने रेस्ट में रखा था। लेकिन अभी पोजीशन बी की बात करेंगे तो नाउ इट्स वेलोसिटी इज v। दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। चलो इसको v1 मान लेते हैं। इन बुक दे हैव कंसीडर्ड इट एज v1 इंस्टेड ऑफ v, तो मैं भी इसको v1 ले लेता हूँ, कोई भी सिंबल ले सकता हूँ। कॉन्साइज फिजिक्स में दे हैव यूज्ड v1 ओवर हियर, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उसको v2 लिया है, इसलिए चलो v1 ले लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है भाई, v लो, v1 लो, v डैश लो, अल्टीमेटली सिंबल से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ओके चलो, v1 इज द वेलोसिटी। तो वही स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूँ। लेट v1 बी द velocity acquired by the body at b पर after falling, कितना फॉल किया? आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस फॉल किया? x, x डिस्टेंस। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, हमारा फाइनल वेलोसिटी जो v है वो v1 हमने माना। इनिशियल u वाज 0, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, वो तो 0 था। v मींस फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज v1 इन दिस केस। एंड s, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ? s इज x। एंड जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है,
क्योंकि बॉडी ग्रेविटी के अंदर अंडर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द बॉल इज फॉलिंग, सो एक्सेलरेशन इज जी। सिंस द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, जी विल बी पॉजिटिव। अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रहा होता तो जी हम नेगेटिव लेते, सो जी इज पॉजिटिव। तो ये सारे सिंबल्स हो गए। Acceleration of the body is nothing but acceleration due to gravity. So A is g, s means distance traveled, that is x, v means final velocity which is v1, and initial velocity is u which is 0. Simple. अब हमें ये equation पता है, v square is equal to u square plus 2as. Equation of motion, the third equation of motion, which we have used in the previous lecture also. So v is our v1, so v1 square is equal to u is 0, so 0 square plus 2 into a is g and s is x. So इसमें आ गया हमारा v1 square is equal to 0 को तो हम हटा दें तो 2gx, राइट। सो v1 स्क्वायर इज 2gx, इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इस केस में भी, जैसे पिछले केस में भी हमने किया था। काइनेटिक एनर्जी निकाला कितना, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया k प्लस यू, तभी तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगा। यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी के इस पोजीशन पर वो सेम फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन v हमारा यहाँ पे v1 है ना, इस पोजीशन में वेलोसिटी कितना है, v1 है, इसलिए हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू, अच्छा v1 स्क्वायर का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, v1 स्क्वायर मतलब 2gx। तो इन प्लेस ऑफ v1 स्क्वायर वी विल राइट 2gx, 2 कट गया, वी आर लेफ्ट विथ mgx। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी अब हम निकालते हैं। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हाइट अबव द ग्राउंड। तुम्हें पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। एवरी सिंबल has a meaning. M means mass of the body, g means acceleration due to gravity, and h means the height of the body above the ground. तो इस केस में हमारा h क्या है, at position b what is the h, this h is not the h। वो तुम ये h तुमको नहीं सोचना है कि ये फॉर्मूला का h है। पोजीशन b में तुमको ये देखना है h का मतलब है हाइट अबव द ग्राउंड। तो व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड एट पॉइंट b, when the ball is at point b what is the height of this ball above the ground, yes ground देखो कितने ऊपर में है, h minus x, h minus x, यानी ये जो फॉर्मूला है ना u is equal to mgh, इसमें m के जगह में तो हम m ही लिखेंगे क्योंकि हमने माना है कि मास ऑफ द बॉल इज m, g भी g ही होगा, लेकिन h इज नॉट h इन दिस केस। h मींस हाइट अबव द ग्राउंड। सिंबल का मीनिंग पे ध्यान दो, सिंबल का मीनिंग क्या है, h मतलब हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड। तो हम पोजीशन बी की बात कर रहे हैं, बी पर जब बॉल है तो व्हाट इज द पोजीशन बी पर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज नॉट एच, दैट इज एच माइनस एक्स। तो इसलिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला हमें बड़े ध्यान से पुट करना है, u इज एम जी एच माइनस एक्स। एम जी एच नहीं लिख दिया ब्लाइंडली, क्योंकि हमारा बॉल का हाइट अभी एच नहीं है ग्राउंड से, वो तो पोजीशन ए पर था एच हाइट। अभी हमारा बॉल का हाइट जब वो पोजीशन बी पर है, वॉट एवर वी आर डूइंग इज फॉर पोजीशन बी, जब बी पर है तो उसका हाइट ग्राउंड से एच माइनस एक्स है, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर। फिगर में देखो पोजीशन बी में जब बॉल है उसका ग्राउंड से कितना हाइट है, एच माइनस एक्स है ना। चलो अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रादर, total mechanical energy, and that is nothing but k plus u. K is mgh plus u is mgh minus x, mgx plus इसमें हम क्या करेंगे mgh minus mgx। हमने ये जो mg ब्रैकेट के बाहर था उसको हमने ब्रैकेट के दोनों टर्म्स h से और x से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, तो ऐसा हुआ। नाउ mgx और ये mgx कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली mgh। अगेन वी हैव गॉट द सेम थिंग, k plus u is mgh, here also we got the same thing, k plus u is mgh। wow, great। अब हम पोजीशन सी की बात करेंगे, पोजीशन सी की बात करेंगे। एट पोजीशन सी,
पोजीशन सी की बात करेंगे, क्या पोजीशन सी पर भी, मतलब इस पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी mgh आता है? आएगा ही, क्योंकि यही तो हम डिराइव कर रहे हैं. नाउ हियर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट पोजीशन सी. पोजीशन सी इज दैट पोजीशन where the ball has still not come to rest, still not come to rest, but it has touched the ground just now. Hello, are you listening carefully? हम पोजीशन सी किस पोजीशन को मान रहे हैं? उस पोजीशन को मान रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को मान रहे हैं जब बॉल आके जस्ट ग्राउंड को टच किया है अभी, लेकिन अभी भी उसकी स्पीड जीरो नहीं हुई है. कुछ देर बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही बॉल रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई स्पीड नहीं रहेगा, बॉल रुक जाएगा. लेकिन अभी आकर उसने ग्राउंड को टच किया है, दैट वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसमें अभी भी बॉल में वेलोसिटी है, लेकिन वो ग्राउंड को अभी अभी आके टच किया है, हम उस पॉइंट ऑफ टाइम को सी बोल रहे हैं. इसका मतलब बॉल में अभी भी वेलोसिटी है, उसने अभी आके ग्राउंड को टच किया है, रेस्ट में आया नहीं है. अभी रेस्ट में तुरंत आ जाएगा नेक्स्ट मुहूर्त में, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम वो समय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही छोटा सा समय जब बॉल ने आके जस्ट टच किया है ग्राउंड को, लेकिन अभी भी बॉल में वेलोसिटी है, एंड दैट वेलोसिटी इज v2. मान लिया हमने कि बॉल में अभी कितनी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आके उसने ग्राउंड को हिट किया वो वेलोसिटी है v2. v2. और ए से सी आने में उसने कितना डिस्टेंस अभी ट्रेवल किया? ए से सी आने में उसने h डिस्टेंस ट्रेवल किया. ए से सी आने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? h. तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है s, उसमें होगा हमारा h इस केस में. पॉइंट बी में जब हमने डिस्कस किया था तो s वाज x, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ऑन टू रीच पोजीशन b वाज x. a से b आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? x, इसलिए s वाज x. लेकिन इस केस में पॉइंट सी की जब हम बात करेंगे तो a से c आने में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज h, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन a टू c इज h, इसलिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज h. ओके, नाउ हमने वेलोसिटी माना कि इस केस में कितना है? v2. सो लेट द वेलोसिटी acquired by the body on reaching the ground v, on reaching the ground v, कितना वेलोसिटी माना? v2. वेलोसिटी है v2. अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो बॉल का हम u मानेंगे. इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए की बात कर रहे हैं, जब बॉल को हमने जिस पोजीशन से गिराया, एकदम स्टार्टिंग का वेलोसिटी u. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी कितना है? s इज h, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया. एक्सेलरेशन विल बी g. ओके, ना वही इक्वेशन, वही बोरिंग सा इक्वेशन फिर से, u स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v हमारा v2 है, हमने तो v2 माना है ना, यहाँ पर एक सिंबल लिख दो, v is our v2 because the final velocity of the ball is v2, is equal to u is 0, so 0 square plus 2g s के जगह h, तो हमारा v2 स्क्वायर हो गया 2gh, क्योंकि ये जीरो को तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2gh. अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट पोजीशन सी, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, इसलिए हाफ एम v2 स्क्वायर, फिर हाफ इंटू एम इंटू v2 स्क्वायर का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. v2 स्क्वायर इज 2gh, इन प्लेस ऑफ v2 स्क्वायर वी विल राइट 2gh. 2 कट गया, वी आर लेफ्ट विद mgh. अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यू, एंड दैट डिपेंड्स ऑन mgh, बट h इन दिस केस इज 0, क्योंकि अभी बॉल ग्राउंड को टच कर चुका है. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड राइट नाउ? मतलब पोजीशन सी पर जब बॉल है तो बॉल का ग्राउंड से कितना हाइट है? कितने हाइट पर बॉल है ग्राउंड से? अरे भाई, बॉल ग्राउंड पर है, हाइट ही नहीं है कुछ. तो h mgh के फॉर्मूला में mgh के जगह mgh इज 0, से mg इंटू 0, एंड दैट इज अल्टीमेटली u इज 0, m इंटू g इंटू 0. तो फाइनली अब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे. टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो फिर से mgh आएगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी
के प्लस यू करेंगे, के का वैल्यू है mgh प्लस यू का वैल्यू 0, सो mgh इज द टोटल एनर्जी। अब तुमने ध्यान से देखा है तो तुम्हें बहुत अच्छा से एक चीज नजर आएगा, अगर तुमने ध्यान से देखा है कि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी, एकदम पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी mgh था, काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट में 0 था। लेकिन जब बॉल ग्राउंड को आके टच किया, मतलब पोजीशन सी की बात कर रहे हैं, तो यही पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, देखो यू 0 हो गया, और वो काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया, काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया। तुमने ये चीज गौर किया, पोजीशन ए में काइनेटिक एनर्जी 0 था, पोटेंशियल एनर्जी mgh था, लेकिन पॉइंट सी में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी विच वाज एट द maximum height got converted to kinetic energy on reaching the ground. Hello, once again. The entire mechanical energy, the entire potential energy which was in the body at the maximum height, यही ना maximum height पर body का potential energy था U, mgh, that only got converted completely to kinetic energy on reaching the ground. तो वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। पॉइंट बी पर थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी और थोड़ा काइनेटिक एनर्जी दोनों में उसने, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और कुछ पोटेंशियल एनर्जी अभी भी था बॉडी बी में, पोजीशन बी में। लेकिन वही बॉल जब और नीचे आया तब फर्दर कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही बॉल पॉइंट सी पर आया उसका जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। Okay, this is what I wanted to tell. The entire potential energy at maximum height got converted to kinetic energy on reaching the ground, and this is what total energy is. यानी टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी बोल रहे हैं इसका मतलब समझ जाना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये भी mgh है, हर पॉइंट पे तुमने देखा k प्लस यू कितना है, mgh है, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh, यही तो हमने निकाला। पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, दैट इज ऑल्सो mgh, एंड अभी अभी हमने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड वो भी mgh निकला ना, दैट इज ऑल्सो mgh। ये तीनों वैल्यूज mgh है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, एंड वी विल डिस्कस देम इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो क्या हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट, चाहे वो मैक्सिमम हाइट हो, मिड पॉइंट ना हो, बीच में गिर रहा है बॉडी तो बीच में कोई सा भी पोजीशन हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट that is equal to the maximum potential energy, I mean the potential energy at maximum height, जिस हाइट से हम उसे गिरा रहे हैं उस हाइट में जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वैल्यू होता है, एंड दैट इज ऑल्सो फर्दर इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है ऑन रीचिंग द ग्राउंड, या फिर सिंपल लिखो काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट result, you can say inference, whatever you call it, and we will need this mantra. This is a very important mantra. We will need this mantra, this concept, in solving a lot of numericals which we will be discussing in the coming classes. Okay, तो ये चीज तुमने देख लिया ना। एक फाइनल स्टेटमेंट लिख के इस डेरिवेशन को हम क्लोज करेंगे कि हमने k प्लस यू mgh तीनों जगह देखा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ऑलरेडी हमने लिखा है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं कि एग्जाम में ये डेरिवेशन कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव और वेरीफाई दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व्ड, या फिर k प्लस यू इज कांस्टेंट, ऐसे करके वो पूछते हैं। तो तुम्हें ये पूरा डेरिवेशन करना है, जो मैंने एग्जैक्टली जैसा लिखा है, फिगर बनाया है, फिर जो स्टेटमेंट्स लिखा है एग्जैक्टली वैसे करना है, पोजीशन ए बी एंड फिर पोजीशन सी का लिखना है। ये चीज मत लिखना,
इसको तो मैंने समझाने के लिए किया था। ओके, ये मत लिखना, बाकी जो चीजें मैंने लिखा है सब लिखना है। ओके, एंड फाइनली ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 3 बना दो। लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 हम क्या कंक्लूड करेंगे? वी नोट दैट द टोटल, कुछ ज्यादा ही स्टाइल में बोल दिया मैंने, टोटल थोड़ा कम स्टाइल में बोलो। नोट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी always remains constant। बस इतना लिखकर आ जाओगे, तुम्हें ये डेरिवेशन में फुल मार्क्स मिलेगा। ये रिजल्ट जो हमने डेरिवेशन का किया इसको मत लिखना, ये तो हमने ऑब्जर्व किया, इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व किया कि किसी भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh होता है और पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट भी mgh होता है। और डेरिवेशन से हमने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड वो भी mgh निकला, क्योंकि वही पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो mgh ही होगा। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। तो ये रिजल्ट का हमने यूज करना है आगे, ठीक है। इसको अभी एग्जाम में मत लिखना ये स्टेटमेंट, ये तो हमारा खुद का ऑब्जर्व किया हुआ कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे आगे। तो चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।